Hello everyone, I'm Neelam Mehra and today we are doing MCQs of real numbers chapter 1, right? We know in our total 40 marks term 1 boards paper we have 6 marks for real numbers, right? Out of total 40 marks, 6 marks is the weightage of real numbers, right? So let's do the MCQs, and before we start doing MCQs I'll just give you a brief summary or recap of the chapter, so that I'll give you some pointers so that you'll keep those pointers handy and you'll be able to solve your MCQs. But over and again, as I've been saying this in my other videos as well, that you can't skip the chapter for MCQs, in the sense, if you think if you have to do MCQs, you have to have the concepts clear. So you have to do and practice detailed questions from the chapter before you start doing MCQs. Though I'm sure most of you, almost all of you, must have already done your chapters and now you're on your MCQs, which is a very good thing. But just in case you haven't done any particular chapter and you want to attempt its MCQs, I will suggest you to please go through the chapter first, practice the questions, understand the concept, then only you'll be able to solve MCQs. In fact, MCQs, people think that MCQs are easier, but I tell you, MCQs are more tricky. In detailed question you'll get a straight question, you'll be given some numbers, you'll have to do the solution directly based on the formula. Those are the straight away questions. But in MCQs they can be tricky. Even if you know the concepts, if you don't understand it thoroughly, you'll not be able to handle your MCQ, you'll not be able to get the correct answer. For that you need to know your concepts clear, crystal clear, right? So understand your concepts from all the chapters and then only start doing MCQs. And if you've done the chapter, I'll just summarize it quickly for you before we start on with our MCQs, right? So I'll not take much time in this, we'll do quickly. So if you have any problem in the pointers, please refer to the detailed chapter and the videos of detailed chapters of mine also, or so many other videos, your books, your teachers, everyone is there. You can refer to them for the detailed concept. So in real numbers, our first and foremost concept is prime number. Prime number is a number which has only two factors, 1 and itself, right? Number 2, 3, 5, 7, right? These are all the examples of prime number. 11, 13, 17, so on and so forth, right? So prime numbers are two factors, 1 and itself, right? They have only two factors. Then comes composite number. Those numbers which are not prime are composite, right? Numbers which are not prime are composite. That means they have other factors, they have more factors other than 1 and itself, right? I'll write it more clear. Factors like 4, 5 is there, then 6, 7 is there, then 8, 9, 10, 12, 14, 15, and list goes on and on, right? So these are all the factors. As you can see yourself, 4 comes in, apart from 1 and 4, it also comes in the table of 2. Apart from 6 and 1, it also comes in the table of 2 and 3. So they do have factors other than itself and 1. That is why they are composite number. Prime number, they will not come in any table. आप चेक कीजिए, किसी के टेबल में नहीं आएंगे, सिर्फ अपने टेबल में सब आते हैं. 3 1 3, 5 1 5, 7 1 7, या 1 के टेबल में, उसके अलावा किसी और के टेबल में नहीं आएंगे ना. यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2. रिमेंबर दिस ऑल्सो. कुछ MCQs में डायरेक्टली 2 नहीं दिया होगा, बोलेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, देन फाइंड दिस एंड दैट. सो यू शुड नो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4. एंड व्हाट अबाउट 1? 1 जो नंबर है
is neither a prime number nor a composite number. Right, I'll write it here. One is neither a prime number nor a composite number. Right? Now comes another concept, which is co-prime. We can co-prime numbers. Any set of two numbers which do not have any common factors among them, right? Prime और composite से थोड़े से अलग है. जैसे we have number 2 and say number 9. We know this is a prime number, we know this is a composite number, but together they can be co-prime number. 2 and 9 are co-prime numbers. Why? बिकॉज आप देखिए, कोई भी आपको ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो. 9 के वैसे फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर 2 के साथ देखा जाए तो दोनों के कॉमन फैक्टर्स कुछ नहीं है. ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे दोनों डिविजिबल हो रहे. दैट इज़ वाई दे आर को प्राइम नंबर्स. सो को प्राइम नंबर्स आर सेट ऑफ नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर. दोनों का कॉमन नहीं है, अलग अलग है. इसके तो कुछ नहीं है, इसके 3 है, बट देन इसका 3 नहीं है, तो वो कॉमन फैक्टर नहीं है. सो दैट इज़ को प्राइम नंबर. नाउ आफ्टर प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर will come to a term called prime factorization. Right? What is prime factorization and what are prime factors? So आपको किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जब करना होता है, जैसे प्राइम नंबर यहाँ पे जैसे 14, राइट. तो 14 के अगर हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, व्हाट विल डू क्विकली इज 14, 2 7s are 14, 7 1s are 7, ख़त्म, राइट. सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 14 विल बी 2 into 7. 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. 2 into 7. 2 7 में हम रुक जाएंगे क्योंकि प्राइम नंबर्स आ गए. दैट मीन्स यू फाइंड आउट द फैक्टर्स till we get prime numbers. That is what it's known as prime factorization, right? So आप कैसे prime factorization निकालने होते हैं किसी के भी. Fifth concept is HCF and LCM. पहले HCF देखते हैं, फिर LCM देखते हैं. HCF is highest common factor. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान से देखने वाली है. HCF निकाल तो आप लोग सब रहे होंगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ HCF, बिकॉज कई सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड MCQ आएंगे जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा HCF निकालना है कि LCM निकालना है, बिकॉज डायरेक्ट नहीं दिया होगा कि HCF निकालो. आपको वो वर्ड प्रॉब्लम होगी जिसमें आपको अंडरस्टैंड करना है कि इसमें HCF का रेलेवेंस है कि LCM का, राइट. What do you have to find out? So for that you need to understand the concept of HCF. So let's find out HCF of say 12 and 14, right? So what is HCF? Highest common factor. यानी कि उसके जितने सब दोनों के कुछ फैक्टर्स होंगे, उनमें से जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, उन सारे कॉमन फैक्टर्स में से भी जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, दैट विल बी HCF. दैट मीन्स सी क्या क्या फैक्टर्स है. अब देखिए 12 के आपके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, किस किस से 12 जाता है. 2 6 3 4 4 3 6 2 एंड देन 12. दैट मीन्स आपके 12 के जो फैक्टर्स है वो हो गए 2 3 4 6 एंड 12, राइट. ये आपको केवल समझाने को लिखा है. फैक्टर्स ये वाले हो गए हैं, राइट. 2 3 4 6. 14 के फैक्टर्स देखिए. 2 7s are 14, 3 से नहीं जाता, 4 से नहीं जाता, 5 से नहीं जाता, 7 से जाता है, एंड देन सीधा 14 से जाता है, राइट. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ
14 एंड 12. तो आप इसके कॉमन फैक्टर्स देखिए कौन कौन से हैं. 2 इज़ देयर इन बोथ द थिंग्स एंड nothing, that is 14, right? So only 2 is there in both the numbers. 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है. 3 यहाँ नहीं है. 14 यहाँ नहीं है. So that means दोनों के common factors में सिर्फ 2 आ रहा है. So आपका highest भी 2 ही होगा. So HCF of 12 and 14 becomes 2, right? Another example, say 12 आपके 18, ठीक है. अब देखिए 2 के फैक्टर्स देखिए. 12 के फैक्टर्स देखिए. 2 6 12, 3 4 4 3 6 12. 18 के देखिए. 2 9 3 6, फिर आपका 6 3 9 2 एंड देन 18, राइट. 2 3 4 से नहीं जाता है, 5 से नहीं जाता है, 6 से, 7 से नहीं जाता है, 8 से नहीं जाता, 9 से, 18 से, राइट. अब इसके कॉमन फैक्टर्स देखिए. 2 3 एंड 6. तो हमारा फैक्टर्स हो जाएंगे यहाँ पे. 2 आपका कॉमन फैक्टर है, 3 आपका कॉमन फैक्टर है एंड 6 आपका कॉमन फैक्टर है. फाइन. एंड यू हैव टू फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, which is 6. Getting it? See, I tell you, this is not the method of doing it. Please don't get confused. ये आपका सॉल्व करने का मेथड नहीं है. HCF LCM निकालने का मेथड मैं आपको बताऊंगी. बट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ HCF, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हम बेसिकली उसके जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स के जितने कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें से जो हाईएस्ट फैक्टर होता है वो HCF होता है. तो वो समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, मेंटली यू शुड हैव दिस थिंग इन योर माइंड कि दिस इज़ व्हाट HCF मीन्स. दैट मीन्स कि जो ये कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे. दैट इज़ HCF, दैट इज़ व्हाट HCF सेज, दैट ऑल दोज नंबर्स जिससे दोनों के दोनों डिवाइड होते हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है दैट इज़ व्हाट इज़ माई HCF. दोनों के दोनों उससे डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है. दिस इज़ व्हाट HCF इज़. एंड व्हाट इज़ LCM? LCM is my lowest common multiple. ये उसका बिल्कुल उल्टा होता है HCF का. सपोज आपके नंबर दिए हुए हैं, यस वी कैन टेक सम न्यू नंबर 2n, आपका 4 ही ले लीजिए. ठीक है. सो LCM सेज, HCF में होता था वो जिनसे डिवाइड हो जाते हैं उनमें से सबसे बड़ा. LCM है जिसको ये दोनों डिवाइड कर देंगे. अभी किस किस को डिवाइड करेंगे, इनके टेबल में क्या क्या आएगा. 2 1 2, 2 2 4, 2 6 2 3 6, 2 4 8 एंड सो ऑन. एंड 4 के टेबल में क्या आएगा. 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16. तो अपने जितने मल्टीपल है उनको ये लोग दोनों डिवाइड करेंगे. इससे सारे नंबर डिवाइड होते हैं, इससे सारे नंबर. पर अगर हमें इनका LCM लेने को बोला है, सो विल फाइंड आउट ऑल दोज कॉमन नंबर्स विच इज़ डिविजिबल बाय दीज नंबर्स. माइंड इट, यू हैव टू मेक इट वेरी क्लियर. HCF में जिससे वो सारे नंबर जिससे ये डिवाइड हो जाते हैं, राइट, इनके फैक्टर्स. इस केस में वो सारे नंबर जिनको ये डिवाइड कर देते हैं आर योर LCM. सो अब देखिए इसमें से कॉमन कौन कौन से. 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है. 4 यहाँ है, सो यहाँ भी होगा. 8 यहाँ है, 8 यहाँ भी है. 6 यहाँ नहीं है. सो नेक्स्ट इज 8, नेक्स्ट इज 12 एंड सो ऑन, राइट. सॉरी, ये 12 नहीं है, आपका 16 है. ठीक है. सो ये सारे नंबर ज़्यादा कॉमन मल्टीपल्स, दोनों इसको डिवाइड कर रहे हैं, दोनों इस नंबर्स को करते हैं, और इसमें से जो लोएस्ट नंबर है वो हमारा LCM बन जाएगा. So LCM is 4, right? कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा जो मल्टीपल है दैट इज 4, राइट. सो दिस इज़ व्हाट LCM एंड दिस इज़ व्हाट HCF. HCF में
आपके फैक्टर्स होते हैं, एलसीएम में वी टॉकिंग अबाउट द मल्टीपल्स. नाउ कम्स 7. This was the concept of HCF and LCM. Why don't we take it in one only? This was the concept of HCF and LCM, and now come the method to solve it, right? How to compute your HCF and LCM. कुछ नहीं है, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे और उसमें से कॉमन निकाल लेंगे. से यही से देख लीजिए, आपका 12 और 18 के फैक्टर्स निकालने हैं. सो HCF ऑफ 12 and 18. 12 के फैक्टर्स निकाल लीजिए, 18 के फैक्टर्स निकाल लीजिए. 2 6 are 12, 2 3 are 3 1s are, right? 2 6 are 12, 2 3, 2 9s are 18, 3 3 1, right? 3 1s are. So आपके 12 के फैक्टर्स आ गए हैं 2 into 2 into 3, or rather we'll write 2 square into 3. 18 के will write 2 into 3 square, right? So अभी HCF will be आपके जितने फैक्टर्स है उसमें से जो दोनों में है कॉमन फैक्टर्स वो ले लेंगे, राइट? सो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है. पावर ध्यान रखिए, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 raised to power 1 है. सो वी विल टेक द स्मॉलेस्ट पावर. वाई स्मॉलेस्ट पावर? बिकॉज 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 into 2 है, बट 2 into 2 कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे तो एक ही 2 है. सो सेम नंबर्स में स्मॉलेस्ट पावर आ गया 2. इसी तरह सेम नंबर में यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 2 3s है, तो कॉमन तो 1 3 हो गया. दिस कम्स 12 and 18 6, right? So this is the way of doing HCF. अब इसी में आप LCM निकाल लीजिए, इसी का LCM निकाल लीजिए. अब देखिए इसमें LCM में will take the lowest common multiple. That means to solve it how will you do? आप यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है, right? So we'll take the higher power. 3 1 है, 3 raised to power 2 है, so we'll take the, यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर है या हाईएस्ट पावर है, but there is one difference. HCF में आप सिर्फ कॉमन नंबर्स लेंगे और उसके स्मॉलेस्ट पावर लेंगे. LCM में आप कॉमन के अलावा अगर सपोज से यहाँ पे कुछ एक और नंबर होता, से 7, और यहाँ नहीं होता, स्टिल वी वुड हैव टेकन 7 विथ हाईएस्ट पावर. 1 ही हाईएस्ट पावर है तो 1 वो भी ले लेते. किसी भी एक में होगा तो LCM में पक्का आएगा, HCF में तभी आएगा जब कॉमन आएगा, ठीक है. सो दिस वाज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग LCM एंड HCF. नाउ देयर इज़ वन फार्मूला जो आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेगा. ऑलवेज रिमेंबर HCF of any two number or more than 2 numbers and into LCM is equal to, so HCF of x and y into LCM of x and y is always equal to product of x and y, that is x into y. Getting it? HCF of x and y, LCM of x and y को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ x into y होता है, राइट? HCF of x and y into LCM of x and y is equal to x into y. This is the formula you can always use, right? With this, my prime factor and HCF concept is over. Now we'll come to rational numbers factor. We know rational numbers are which are in the form of p by q, and irrational numbers are in the form of can never be expressed in the form of p by q. फ्रैक्शन की फॉर्म में रैशनल नंबर आ सकता है, इरेशनल नंबर नहीं आ सकता. अभी हम क्विकली देखेंगे. रैशनल नंबर जब भी होगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग होगा। ठीक है, रैशनल नंबर के जब भी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अगर वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, इन दैट केस उसको हमेशा डिवाइड करके हम टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल में ले आएंगे, ला सकते हैं। तो वो डेसिमल हमेशा याद रखिए, रैशनल नंबर अगर है तो वो दो ही फॉर्म का डेसिमल होगा, इधर टर्मिनेटिंग एंड हो रहा होगा, या अगर एंड नहीं हो रहा होगा तो सेम नंबर रिपीट हो रहा होगा, राइट। और अगर वो इर्रेशनल होगा तो एक अकेला ऑप्शन है कि वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स माय irrational number, and rational number always either have a terminating or a non terminating repeating, right? So उस केस में नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डिसाइड करने के लिए कैसे पता चलेगा? एनी p/q रैशनल नंबर इफ देयर, देन p/q rational number will have terminating decimal और will, इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग ना हो आप लोगों के लिए, इसको सीधा मैं शॉर्ट में लिखती हूँ ताकि क्योंकि ये समरी है, नहीं केस आप बस देखेंगे आपको याद आ जाएगा। तो मैं इसको लिखती हूँ p/q will be terminating implies that, अगर वो टर्मिनेटिंग होगा तो क्या कंडीशन पक्का सेटिस्फाई करेगी? q will have 2 raised to power n and 5 raised to power n factors, right, where n and m are non-negative integers, 0 हो सकते हैं और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं। अगर मेरा टर्मिनेटिंग है तो 2 और 5 के फैक्टर्स ही होंगे सिर्फ, और will be non-terminating repeating, then q will have a third factor as well, third or more factor will have factors other than 2 and 5 also, clear। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर्स होंगे। 2 और 5 मीन्स ज़रूरी नहीं है 2 और 5 दोनों के हो, या 2 के होंगे या 5 के होंगे या दोनों के होंगे, लेकिन तीसरा कोई नंबर नहीं आएगा सीन में, ठीक है। तो फिर हम बोलेंगे कि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, बिना डिवाइड करे भी हम सीधा देखेंगे बस क्यू के फैक्टर्स। हमें दिया हुआ एक रैशनल नंबर और पूछा है कि इसके टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, हम डिनोमिनेटर उठाएंगे, उसके फैक्टर्स निकाल के देखेंगे। अगर वो 2 है या 5 है या दोनों है तो बिंगो, इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर श्योर। बट अगर आप देख रहे हो उसके फैक्टर्स निकाले हैं और 2 5 है भी नहीं भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस देखना है 2 और 5 के अलावा कोई और तीसरा नंबर या उससे ज़्यादा नंबर तो नहीं है। 2 और 5 के अलावा एक भी अगर कोई दूसरा फैक्टर हुआ तो इमीडिएटली विल से इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल, विल बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। सो यहाँ तक हमें समझ में आ गया है।
सॉल्व करना है कॉन्सेप्ट कि इसके अलावा एक छोटी चीज़, एक चीज़ और रह गई है, वो मैं क्विकली बता देती हूँ, विच इज़ 9th के बाद 10th पॉइंट है, पॉइंट्स प्लेसेस ऑफ डेसिमल। कितने प्लेस ऑफ डेसिमल आएगा, मतलब किसी नंबर पे पॉइंट कहाँ लगेगा, तो वो कैसे पता चलेगा? हम Q के फैक्टर्स निकालेंगे नीचे, राइट। अगर मेरा P बाई Q, सपोज P तो ऊपर एज इट इज रहेगा, Q को हम 2 और 5 की फॉर्म में ले आए, हमें पता है टर्मिनेटिंग होगा तो 2 और 5 की पॉइंट में आएगा। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो कॉन्सेप्ट आएगा टर्मिनेटिंग के टाइम के टाइप वाले में ही आएगा, जिनके टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहे होंगे उसी पे ही अप्लाई होता है। सो 2 रेज़ टू पावर, कोई पावर है या तो 0 है या कोई पॉजिटिव है। सेम वे 5 की भी कोई 0 है और कोई पॉजिटिव नंबर है। अगर ऐसा हम पहले रैशनल नंबर को इस फॉर्म में ले आएंगे एंड देन विल सी विच इज़ बिगर, n और m, राइट। n और m में से जो भी बड़ा पावर है उतने प्लेसेस ऑफ डेसिमल में p को करेंगे, से n इज़ ग्रेटर देन m, राइट। सो जो हम आंसर लिखेंगे, p का भी पॉइंट यहाँ है, p के यहाँ पे n डिजिट इधर लेके जाएंगे और वहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब n और m में चीज़ें अगर क्लियर नहीं हो रही है तो हम इसको करेंगे, से n भी 2 एंड m भी 3, से 2 और 3 है, ठीक है। 2 जो 2 की पावर है, 3 5 की पावर है। सो वी कैन सी बड़ी पावर 3 है। सो हम प्लेसेस ऑफ डेसिमल में इसको अगर कन्वर्ट करना है, सो p को कैसे लिखेंगे, 2 एंड 3 है। सो वी कैन सी m इज़ बिगर, 3 बड़ा है, दोनों में से पावर देखेंगे जो बड़ी पावर है, तो वी विल से जो p है, दिस विल p will terminate, t will terminate after 3 places of decimal, right। that means आपको p का पॉइंट इधर है, p is generally 0, तो यहाँ से 1 2 3, तो इसका जो जाएगा 0 0 p, करेक्ट। सो दिस इज दिस। आपका जो ये p है, ये वाला p लेकिन सॉल्व करना होगा, तो एग्जैक्टली जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे p नहीं रह सकता, आपको इससे मल्टीप्लाई करके कुछ आएगा जो आप एक्सरसाइज 1.4 में देख लीजिएगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली p नहीं आएगा, कुछ और दूसरा p आ जाए, सॉल्व होके कोई दूसरा नंबर आ जाएगा, राइट। बट प्लेसेस ऑफ डेसिमल आप सीधा देख के निकाल सकते हैं। MCQ में आएगा, ये एक रैशनल नंबर है, बताइए कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। सो वी विल सी, नीचे के फैक्टर्स निकाले 2 और 5 में, जो बड़ी पावर है उतना हम आंसर बोल देंगे कि इतने प्लेस बाद, पॉइंट्स के इतने प्लेसेस बाद दिस नंबर विल टर्मिनेट, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, बच्चा पार्टी, दिस इज़ माई समरी ऑफ रियल नंबर्स। आपको ये सारे पॉइंट्स अगर क्लियर है, सो यू विल बी एबल टू डू MCQs ऑफ कोर्स विद प्रैक्टिस, बट आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। प्राइम नंबर पता होना चाहिए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2, smallest composite number is 4, 1 is neither prime nor composite। co-prime number, कोई ऐसे set of numbers जिनके कॉमन कोई भी फैक्टर्स नहीं है, उनके सेपरेट में है। co-prime number, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि any 2 prime numbers are together called co-prime numbers as the name suggests. No, it is not. They can be a set of 2 composite number as well, they can be set of 2 prime number as well, they can be set of 1 composite and 1 prime and 1 composite as well, right। so ऐसा कोई definition नहीं है कि 2 prime से ही co-prime बनते हैं, no, it's just that they should not have any common factors among themselves। 9 के अलग से बहुत से फैक्टर्स है, वो ऐसे composite है, लेकिन जब वो 2 के साथ अगर उसको देखते हैं तो उसके कोई भी common factors नहीं है, that is why they become a composite number here, right। so
any set of two numbers which do not have any common factors among them are called co-prime numbers. Then prime factorization हमें पता है कैसे निकालना है. HCF we know. HCF is आपके जितने फैक्टर्स होते हैं उसमें से सबसे जो बड़ा वाला फैक्टर होता है दैट इज़ योर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. LCM में होता है उल्टा, उसके जितने मल्टीपल होते हैं. HCF में वो सारे नंबर जिससे आपके गिवन नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे उनमें सबसे बड़ा नंबर, और LCM में वो आपके जो गिवन नंबर्स है वो जिसको डिवाइड कर रहे हैं उनमें से सबसे छोटा नंबर इज़ LCM, राइट. देन निकालते कैसे हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं. HCF में सिर्फ कॉमन नंबर्स लेते हैं जो दोनों में हो. दैट मीन्स अगर कॉमन नंबर है तो उसका स्मॉलेस्ट पावर इधर आता है. LCM में ऐसा दोनों में होने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक में भी अगर वो होगा तो वो LCM में आ जाता है विद द हाईएस्ट पावर. ये एक फॉर्मूला है, कोई दो नंबर है तो और उनका HCF LCM हमें पता है, तो उसका HCF इंटू LCM करेंगे तो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होंगे. रैशनल नंबर के केस में rational number is a number which can always be expressed in form of P by Q, where P and Q are any two integers which can be either positive or negative integers, you know, and the denominator can never be zero, right? That is what rational numbers are. Irrational numbers are which cannot be expressed in form of P by Q. रैशनल नंबर होगा तो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इरेशनल नंबर होगा तभी भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा. जस्ट दैट रैशनल नंबर के केस में दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन हो सकते हैं, और या तो वो टर्मिनेट हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे, या फिर एंड नहीं होंगे, चलते रहेंगे, बट सेम नंबर्स, सेम सेट ऑफ नंबर्स रिपीट होंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग. अगर नॉन टर्मिनेटिंग है बट सेम नंबर्स नहीं रिपीट हो रहे, अलग अलग नंबर्स रिपीट होते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, सो दे आर, देन दैट केस वी आर श्योर इट्स नॉट अ रैशनल नंबर, इट्स एन इरेशनल नंबर. और रैशनल नंबर के केस में बिना चेक डिवाइड करें अगर हमें देखना है टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा तो हम डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स निकालेंगे. 2 और 5 की टर्म्स में है तो इट विल हैव ए टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल. अगर 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है. 2 और 5 टू अदर देन 2 और 5. और अगर सीधा पूछा है कि कितने पॉइंट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट, सो हम Q के डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालेंगे. 2 और 5 की टर्म्स में ही आएगा जब टर्मिनेटिंग की ही बात हो रही है, तो उसमें हम पावर देखेंगे 2 और 5 की, जो मैक्सिमम दोनों में से जो बड़ी पावर है उतना आप आंसर लिख देंगे कि P दिस योर डिनोमिनेटर विल टर्मिनेट आफ्टर दिस मच नंबर ऑफ दिस मच प्लेसेस ऑफ डेसिमल, जो भी 2 और 5 में से बड़ी पावर होगी. अब उसके बाद सॉल्व करना इसको, वो डेसिमल, ये तो हम केवल बताएंगे कि इतने प्लेसेस बाद टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन टर्मिनेट होके आंसर क्या आएगा वो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा. इससे वो आप 1.4 एक्सरसाइज देखिए, क्वेश्चन 1 एंड 2, क्वेश्चन 2, तो आप वो कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, राइट. सो हियर इज़ माय summary of real numbers. Let's start doing our multiple choice questions now, right? इसको आप कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिमाग में रखना चाहते हैं दिमाग में रख लीजिए, बट आई वुड सजेस्ट नोट इट डाउन समवेयर और टेक ए स्क्रीनशॉट सो दैट इट विल हेल्प यू डूइंग द क्वेश्चंस, राइट. और हम जब MCQs करेंगे तो मैं आपको हर MCQ में भी बताते जाऊँगी कि कौन सा फंडा लग रहा है, कौन सा आपका कॉन्सेप्ट लग रहा है. वो हम 10-12 के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग आवर MCQs. So let's start doing our MCQs. We have our 10 points in our hand, you know, the summary, just keep it handy, and let's start doing our questions, right. So here are the first 4 questions. Remember, in MCQs, multiple choice questions, there's the one statement, one question, and we have 4 options, right, and only one of them is correct. Only one of the options are correct. One of the option is correct, and you have to, you know, identify which one is that. So to solve that, to identify the correct answer, there can be different methods. See, MCQ, remember one thing, here the examiner is not going to look for your solution, is not going to look at your solution. They will just check whether you have ticked the correct one or not, right. For that, there can be
different ways of doing MCQs depending on the kind of question. At many places, in many of the questions, you just have to use, just the concept, think of it, do little plus minus calculation there, and you'll get the answer. Somewhere in other questions, you have to do the complete solution also. You have to find out the whole LCM, everything, you'll get the answer, and then you'll get tick here. But in many places, trick works, and you don't have to do the complete solution. You can do just a little trick, which will be encountering in many of the questions here itself, and you can do it. कोई फिक्स रूल नहीं होता है MCQ का, जैसे बाकी आपकी डिटेल एक्सरसाइज का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का होता है. आपको पूरा का पूरा सॉल्व भी करना होता है, स्टेप मार्किंग होते हैं, हर कोई भी स्टेप मिस नहीं करना होता है, डिटेल क्वेश्चन करना होता है, देन ओनली यू गेट फुल मार्क. यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे आपके स्टेप्स नहीं देख रहे हैं. तो काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथ्स में बहुत शार्प होते हैं लेकिन स्टेप्स मिस कर जाते हैं. उनको नहीं पसंद डिटेल एक एक चीज़ देना. दे नो यहाँ से यह है एंड दिल गिव यू द आंसर. दे मिस आउट देयर मार्क्स इन योर डिटेल सब्जेक्टिव एग्जाम्स. एग्जामिनर बोलता है ठीक है बट बेटा तो यहाँ से ये तो ले आया, बट ये वाला स्टेप तो मुझे क्लियर करके दिखा. इवन इफ इट्स देयर इन योर माइंड, आई वांट टू सी इट ऑन योर कॉपी, एंड यू लूज मार्क्स. So it's excellent opportunity for them, and it's an excellent opportunity for every one of you. MCQs में आपको जितने आपके, and I tell you, जितने concepts strong होंगे उतने MCQs easy होंगे आपके लिए. Normally मेरे ख्याल से शायद कुछ बच्चे इस impression में है, वाओ MCQ का एग्ज़ाम है, आराम से कर लेंगे, बस टिक ही तो करना है, डिटेल नहीं पढ़ते हैं. You're mistaken. The detail exam is much easier than MCQs. MCQs are ट्रिकी. MCQs are concept based. जिसको जितना कॉन्सेप्ट अच्छे से आता होगा, जितने कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी डिटेल वाली, उसका दिमाग यहाँ ज़्यादा दौड़ेगा. सो आई एम रिपीटिंग, डू ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग द MCQs. सो राइट, स्टार्ट डूइंग इट. कई जगह होता है आपको पूरा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक दो एग्जाम्पल्स लेके देख लेते हैं वो स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है. लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट डूइंग MCQs ऑन रियल नंबर्स, राइट. एंड फॉर इन्फॉर्मेशन, these questions, these MCQs we are doing from MTG book. I'll tell you the exact name so that there shouldn't be any problem there. It's published by MTG Learning Media Private Limited, right? So we have to take MCQs from somewhere. We are doing, and I found these questions very nice, good concept based from term 1 point of view. So we are doing it from MTG Learning, right? So let's start doing it. Our first question is, if P and Q are co-prime numbers, I'll be doing solution here. It's a rough thing. You'll also get rough paper there. You'll do it, and then you will get a OMR sheet. That is optical mark recognition. आपको कुछ इस टाइप का दिया होगा, जैसे क्वेश्चन 1 में आपके ऑप्शंस है अगर A, B, C, D, तो उस पर कुछ एक राउंड होगा. This whole sheet is your answer sheet, and once you complete it, once you finish it, a system will be checking it. ये computerized system check करता है. तो वो basically सिर्फ ऑप्टिकल मार्क मतलब जो आपने मार्क बनाया है यहाँ पे, उसको रिकग्नाइज करता है. आपसे पूछा गया सपोज फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर C, सपोज, तो आप यहाँ पे C को कलर कर देंगे. आपको वहाँ इंस्ट्रक्शन पढ़नी है, पेन कौन सा यूज़ करना है वो दिया होगा, ब्लैक और व्हाटएवर. तो क्वेश्चन 2, सपोज A, B, C, D, राइट. सपोज B, आई एम जस्ट डोंट रेफर टू दिस क्वेश्चन, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि OMR शीट किस तरह की होगी, राइट. इसी तरह से इस तरह की कुछ होगी आपकी. तो आप जो भी करेक्ट आंसर बोलेंगे आप उसको सिर्फ कलर कर देंगे, और जो बाद में सिस्टम होगा वो उसको रीड कर लेगा कि ओके यहाँ पे डार्क आ रहा है, बाकी सारे लाइट है, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, टिक. वो सिस्टम में उसको रिकॉर्ड करता जाएगा, आपके टोटल मार्क्स आ जाएंगे. सो प्लीज़ डू इट वेरी केयरफुली, क्योंकि सिस्टम देख रहा है तो वो ह्यूमन नहीं है. वो दिमाग, कई बार आप सोचोगे अच्छा पहले A है, नहीं A नहीं है, नहीं C है, चलो इसको रॉन्ग कर दो, वो समझ जाएगा. नो, वो नहीं समझेगा, वो सिस्टम है. वो देखेगा ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, वो उसको इनवैलिड कर देगा, मार्क्स काट देगा. सो डू इट वेरी केयरफुली और सोच के कीजिए, सीधा टिक मत लगाइए. पहले एक बार देख लीजिए आपको कौन सा करना है, क्या आंसर है, उसके बाद ही टिक लगाइए, अदरवाइज मत लगाइए. ओके, राइट. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट.
First question is if P and Q are co-prime numbers, you know we've discussed what are co-prime number, जिसके common कोई factors नहीं होते, दोनों के एक साथ कोई common factors नहीं होते, तो P and Q कोई common co-prime numbers है, then P square and Q square are tricky. P and Q तो पता है भैया common factors नहीं होते. अभी P square और Q square के बारे में है कि they will be co-prime, they will not be co-prime, they will be even, they will be odd. ये बताओ. See, इसके लिए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपने अगर नहीं पढ़ा है, बिकॉज यू नो व्हाट इज़ को-प्राइम नंबर, और आपको पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ गया कहीं से, तो उनको बोला है कि वो क्या होंगे. देख लेते हैं. वी नो व्हाट आर पी क्यू, राइट, वी नो प्राइम. तो ऐसे में क्या कीजिए, आप 2-3 एग्जाम्पल ले लीजिए. यू विल गेट टू नो. मुझे ट्रेंड चलेगा तीनों में सेम चीज़, तो ये तो अपने आप नेगेट हो जाएंगे, राइट. सपोज पी एंड क्यू. अब देखिए को-प्राइम नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं. माई को-प्राइम नंबर्स दोनों के दोनों आपके प्राइम नंबर होने की ज़रूरत नहीं है, पर आपस में दोनों के दोनों को प्राइम होने चाहिए. जैसे 2 and 7, राइट. अभी दोनों प्राइम नंबर्स भी है, पर अगर दूसरे केस में हम 3 और 9 भी लेंगे, 2 और 7 भी लेंगे तब भी चलेगा, ठीक है. 3 और 9 नहीं ले सकते क्योंकि उनके बीच में कॉमन नंबर्स है. सो हम एक 2/7 ले लेते हैं, एक 2/9 ले लेते हैं, एक 3/8 ले लेते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें दोनों आ रहे हैं, राइट. ये 2 में 3 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, ये 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, तो को प्राइम नंबर्स है. अब इनका स्क्वायर निकाल के देख लो फटाफट, ठीक है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यू हैव टू कीप द स्पीड ऑल्सो. सो इसका स्क्वायर निकाल के देख लो. 49, 224, 99, 81, 339, 99, 64, राइट. अभी चेक कर लेते हैं ऑप्शंस. देखिए ये दोनों को-प्राइम है, मतलब ये दिस इज अ को-प्राइम नंबर्स. सो फर्स्ट इज को-प्राइम के को-प्राइम होंगे. आप इसमें देखिए फैक्टर्स कॉमन है कि नहीं. अच्छा, अब नीचे इवन ऑड तो सीधा ही देख सकते हैं. इन्होंने ऊपर की कोई कंडीशन नहीं बोली थी कि वो इवन ऑड है, वो कुछ भी को-प्राइम नंबर्स है. अब ये इवन है, ऑड है. अब देखिए ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये इवन है. तो कोई फिक्स नहीं कह सकते, जबकि यहाँ पे आपका डिपेंड करेगा पी एंड क्यू हमारे क्या है, राइट. सो वी कांट से एनीथिंग. जब ऊपर के बारे में कुछ नहीं बोला है तो इवन और ऑड का तो कुछ हमें दिख ही नहीं रहा है, मिक्स होते हैं. सो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इवन, नो नॉट पॉसिबल, हमें दिख ही रहा है. एक इवन है, एक ऑड है, एक इवन है, ऑड है. सो ये और ये दोनों तो निगेट हो गए, राइट. ये दोनों नहीं हो सकते हैं. अब बच्चे को-प्राइम है कि नॉट को-प्राइम है. जब पी क्यू को-प्राइम थे, पी क्यू हमारे सारे को-प्राइम है, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का क्या सीन है. अब देखिए 4 और 49 में कुछ कॉमन है. 4 49 में किसी के टेबल में जाता है, 2 2 4, ये इवन नहीं है, 2 में नहीं जाएगा. ये 4 के टेबल में 4 1 1 नहीं जाएगा. सो दिस आर को-प्राइम, ठीक है. 4 और 81 में देखिए ये इवन है, 2 में जाएगा, 4 में जाएगा. ये ऑड है, 2 और 4 में नहीं जाएगा, किसी और में जाएगा, उसमें नहीं जाएगा. सो दिस इज़ अगेन को-प्राइम. 9 and 64 में भी आप चेक करके देख लीजिए. 9 जो है वो 3 के टेबल में जाता है और 9 के टेबल में जाता है, और 3 के टेबल में 64 नहीं जाता. 3 2 6, 3 1 3, रिमाइंडर बच जाएगा. और 9 के टेबल में भी नहीं जाता, राइट. सो दैट मीन्स इट्स अगेन अ को-प्राइम. सो 3 कान बी ए कोइंसिडेंस, राइट. सो को-प्राइम के हमेशा को-प्राइम ही होंगे. सो माय करेक्ट आंसर इज ए, को-प्राइम. क्लियर. क्विकली विल डू इट. फटाफट 2-3 एग्जाम्पल्स लेंगे एज आई सेड, लेकिन इसके लिए आपको को-प्राइम क्या होता है ये पता होना चाहिए, तभी आप उसको एग्जाम्पल भी ले पाएंगे. सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग. सोल्यूशन को नहीं देख रहा है, आप किसी भी फॉर्म में कैसे भी स्क्रिबल कर दीजिए, चलेगा, लेकिन नीटली करना चाहिए आई सजेस्ट, बिकॉज उससे क्या होता है आपका रॉन्ग नहीं होता है. आप मिक्स ऐसे गिचपिच करते हैं तो कहीं पे कुछ नंबर मिस हो जाता है, कोई फिगर रह जाता है और फिर आंसर रॉन्ग आ जाता है. मेरे साथ ऐसा होता था. सो इसलिए थोड़ा नीटली कीजिए वो आंसर पर, और दोबारा रीचेक करने के लिए भी आपको ईजी पड़ेगा. पर अगर कोई एक्सपर्ट है, मास्टर है, गिचपिच करके भी करेक्ट लेके आ जाता है, टू गुड एट कॉन्सेप्ट्स, यू नो, और बहुत सारी प्रैक्टिस की है, तो वो भी चलेगा, बिकॉज नोबडी इज़ गोइंग टू लुक एट योर सोल्यूशन,
पर सजेशन इज़ क्लियर कीजिए। नंबर 1 कभी कहीं कुछ मिस नहीं होता है, सिली मिस्टेक्स नहीं होती है, केयरलेस मिस्टेक्स नहीं होती है। सेकंड, आप रीच टाइम बचेगा, कहीं कुछ आपको लग रहा है ये रॉन्ग है, रीचेक करना चाहेंगे तो पूरा प्रोसेस क्लियर होगा आपके पास। सेकंड इज इफ पी एंड क्यू आर प्राइम्स, अगेन पी एंड क्यू कोई प्राइम नंबर है एंड देन HCF ऑफ पी क्यू विल बी, पी एंड क्यू प्राइम नंबर्स है और बोला है कि उसके HCF क्या होंगे। सो सी, ये हमारा फर्स्ट का था। सेकंड का देखिए, पी एंड क्यू आपके प्राइम नंबर्स हैं, हमें निकालना है HCF। HCF वी नो कॉमन फैक्टर्स, दोनों को जो डिवाइड करते हो, दोनों के जो फैक्टर्स हो उनमें अगर वो एक से ज़्यादा होगा तो उसमें से जो सबसे बड़ा होगा वो ले लेंगे या फिर लेंगे। तो देखिए पी एंड क्यू अगर दोनों प्राइम नंबर्स हैं, देव सेड पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर, पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर। सो डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर सेज it is divisible by 1 and itself only. That means P के फैक्टर्स क्या होंगे, P1, Q के फैक्टर्स क्या होंगे, Q1. Obviously since P and Q are two different numbers, so ये तो फैक्टर कॉमन नहीं है हमारे पास, ये कॉमन है। इनफैक्ट ऑल द प्राइम नंबर्स, एनी नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स आप ले लो, और भी हमारे पास अगर प्राइम नंबर्स आ जाए XY, उनके भी फैक्टर्स होंगे X1 Y1, तो Y फिर से कॉमन होगा। तो जितने प्राइम नंबर्स आएगा उनका हम एक साथ भी HCF लेंगे। सो हाईएस्ट की तो बात ही नहीं आएगी, एक ही सिंगल फैक्टर होगा 1 एंड देन ऑब्वियसली बिकम्स द HCF ऑफ P and Q। गेटिंग इट? प्राइम नंबर्स के कॉमन फैक्टर बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए। तो प्राइम नंबर्स में दो ही, हर प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर्स होते हैं, सेम एंड 1, सेम एंड 1। तो सेम तो सारे, सेम मीन्स itself and 1, itself and 1, itself and 1। अब itself तो सारे नंबर्स अलग है तो उसके फैक्टर्स भी itself अलग अलग फिगर्स होंगे, सिर्फ एक 1 होगा जो सब में कॉमन है फैक्टर। सो दैट ऑब्वियसली बिकम द HCF ऑफ those numbers, any two prime numbers, any number of prime numbers। 1 is the correct answer, A is the correct answer, right? If LCM of A and 18 is 36, right? LCM A और 13 का दिया हुआ है, थर्ड में A और I'm sorry 18, I read it 13, I corrected, A and 18 का दिया हुआ है 36, right? A और 18 का LCM है 36 and HCF of A and 18 is 2। HCF दिया हुआ है A और 18 का 2, LCM HCF दिया हुआ है, आपको रूल याद आ रहा होगा, याद कीजिए। तो देन A इज़, आपको 18 एक नंबर पता है, सेकंड नंबर पता करना है, राइट? सो आप HCF LCM का जो मैंने अभी समरी कराई है उसमें देखिए, उसमें HCF LCM के एक फॉर्मूला दिया हुआ था, HCF इंटू LCM और वाइस वर्सा, LCM इंटू HCF जो भी लिखा होगा, इंटू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ विच नंबर, जिसका वो LCM HCF है, ठीक है। उसमें वहाँ पे मैंने दिया होगा HCF ऑफ XY है, तो HCF ऑफ XY, LCM ऑफ XY विल बी X इंटू Y, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, ये बहुत अच्छे से आप इसको याद कर लीजिए। इसके ज़्यादा डेरिवेशन में MCQ के लिए मत जाइए, हालांकि कॉन्सेप्ट बेस्ड जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया होगा, बट दिस इज़ वेरी इजी, यू डोंट हैव टू डू दैट। आप बस ध्यान कर लीजिए, एक HCF और LCM किसी भी नंबर का उसके प्रोडक्ट के बराबर है। तो जैसे यहाँ पे HCF दिया है 2, LCM दिया है 36, विल बी इक्वल टू A इंटू 18, राइट? तो आप सॉल्व कर लीजिए, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड एक्सचेंज भी कर सकते हैं, या फिर आप 2 इंटू 36 अपॉन 18, 18 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू A, राइट? ईदर वेज उससे कोई फ़र्क नहीं है, आप राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे देखिए 2 9s are 18 and 9 4s are 36, so A comes to be 4, which is my C option। Mind it, अभी मैं आपको सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, इसलिए मैं ये पूरा फॉर्मूला लिख रही हूँ कि बच्चे LCM ये दिया है, HCF ये दिया है, आप HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट करोगे और ये आएगा। आप जब वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में अपने डेस्क में बैठे हो,
पूरा कॉन्सेंट्रेट करके, टाइम टिक 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 चल रही है, यू हैव 90 minutes with you, right? And questions are given, so there you have to be very quick. आप ये फॉर्मूला मैंने जैसे बोला है, आपका कोई सोल्यूशन नहीं चेक कराई, रफ शीट रफ में ले जाएंगे, आई डोंट नो, आप देख लीजिएगा, या तो वहीं पे डंप करना होगा या आप घर लेके आएंगे, जो भी करेंगे आपको ये एग्जामिनर नहीं देखेगा। तो आपका ये वाला फॉर्मूला कोई नहीं देख रहा, आपको सीधा ये मैं अभी आपको प्रोसेस के लिए बता रही हूँ कि हाउ इट विल गो इनसाइड योर माइंड। वहाँ पे आप क्या करेंगे, आपकी जगह मैं होंगी, मैं क्या करूँगी, मुझे दिख रहा है HCF है 2, LCM है 36, तो मैं सीधा यहाँ पे जाऊँगी 2 × 36 इक्वल टू A × 18, और मैं सीधा यही से जंप मार दूँगी, A × नीचे गया 4। ओके, दिस एंड दिस शुड नॉट टेक मोर देन 30 सेकेंड्स, 20 to 30 सेकेंड्स में ही हो जाएगा, और अब यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि मैं टिक करूँगी तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। HCF of 2 numbers is 23 and the LCM is 1449. Again a similar question with different numbers. HCF of 2 numbers is 23. जैसा मैंने बोला है, हमें प्रोसेस नहीं देखना है, तो हम प्रोसेस में टाटते जा रहे हैं जस्ट टू स्पेस बचाने के लिए। हालांकि हम यहाँ भी कर सकते थे, इट्स ओके, चलिए वही कर देते हैं। यहाँ पे और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। अच्छा बताइए, HCF 23 है, LCM 1449 है, LCM 1449 है, HCF 23 है, ठीक है। 23 and 1449, वन ऑफ द नंबर 161, दूसरा नंबर निकालिए। तो हमें पता है दोबारा से यही वाला LCM 1440, आप इस साइड कर लीजिए, आपको ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। पहले प्रोडक्ट लीजिए, सी फॉर्मूला इज HCF × LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू HCF LCM, इट्स वन द सेम थिंग। सो आपको एक नंबर दिया हुआ है 161, दूसरा नंबर से x जो हमें फाइंड करना है, इंटू 1449 इंटू 23, ठीक है। सो x सॉल्व कर लीजिए, गॉट इट। तो यहाँ पे आपको थोड़े से फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 161 का अगर आप यहाँ पे फैक्टर्स निकालेंगे तो आप देखिए ये किससे जाता है, 2 से नहीं जाता, 3 से नहीं जाता, 4 से नहीं जाता, 5 से नहीं जाता, 6 से नहीं जाता, 7 से शायद चला जाए, 7 2 ज़ा 14, 3 ज़ा 23, 23 वन 23 ज़ा प्राइम, तो वो किसी और से नहीं जाएगा। सो आपका नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 7 × 23, ओके। सो x इक्वल टू 1449 को भी खोलने की ज़रूरत नहीं उतना बड़ा। सी MCQs में जितने बड़े कैलकुलेशन अवॉइड करेंगे अभी देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे। 161 को हमने कर लिया है, 7 2 ज़ा 14 21, 7 × 23, राइट। 23 से 23 गया, 7 से 7 चला जाएगा, देखिए 7 2 ज़ा 14, 4 0 एंड 49 7, 207 A is my answer. So got it? So ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही हैं, बट ये याद रखिए LCM HCF वाला आएगा। 2 नंबर्स है, कोई एक नंबर दिया होगा, HCF देगा, LCM देगा, या अदर वे दोनों नंबर्स दे देंगे, LCM HCF में से एक गायब कर दिएगा, तो आप इस फॉर्मूले में डाल देंगे। HCF LCM का मल्टीप्लिकेशन हमेशा प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। जो भी दिया है, जो नहीं दिया है, सॉल्व करके विल बी एबल टू फाइंड आउट। सो दीज टू वर्क ईजी क्विक। प्राइम नंबर्स हमने एग्जाम्पल से कर लिए, और HCF ये तो आप कॉन्सेप्चुअली याद कर लीजिए कि को प्राइम में P² Q² को प्राइम होता है। अगर हमने प्रैक्टिस कर लिया है तो आपका सीधा आएगा, तो शायद आपको वो भी ना करना पड़े। आपको याद है मैम ने कराया था, P and Q अगर को प्राइम होता है तो P² Q² हमेशा को प्राइम ही होता है, बिकॉज ये कैलकुलेशन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, राइट। सो आप दिमाग में डाल लीजिए। और P and Q का प्राइम नंबर्स होते हैं, P and Q, उनका HCF 1 होता है। कॉमन फैक्टर 1 ही होता है उन सबके बीच में, 2 ही फैक्टर्स होते हैं, राइट। एक खुद, एक 1। खुद तो सेम हो नहीं सकते, सारे लोग अलग अलग है। सो 1 इज़ द HCF, राइट। सो दीज आर द फर्स्ट 4 क्वेश्चन, लेट्स डू द रेस्ट।
next 4 MCQs. Okay, so these are question number 5, 6, 7, 8, right? For your practice, I'm putting all these questions, you know, I'm repeating from MTG. I'm putting all these questions in the description box. You can take a printout of these questions or copy it down, whichever suits you, and I'll give you the answers also, but not the solution. For solution you can always refer here, and if you've done it once with me, I'm sure you won't need to see the solution again. In case you do, you can refer it here, but to recheck your answer, you can quickly do the questions and check your answer to, you know, confirm your practice. So here goes the 5th question. If P and Q are positive integers, any positive integers are P and Q, such that P equal to AB square, P दिया हुआ है AB square, Q दिया हुआ है Q is equal to A cube B, right? AB square and A cube B, where A and B are prime numbers. That means इनका prime factorization हो रखा है P और Q का AB square और A cube B में, because prime factorization में ही वो prime number तक आके रुक जाता है. So then HCF of P and Q are any of these. आपको P दिया हुआ है, मैं यहाँ पे सोल्यूशन कर रही हूँ. यहाँ तक आपका क्वेश्चन 8 है, तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन कर रही हूँ 5th वाले का. P is AB square, Q is A cube B, right? HCF निकालना है. तो HCF हम कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन हो रखा होता है और उसका कॉमन फैक्टर A यहाँ है, A क्यूब यहाँ है. दोनों सेंस में आप समझ लीजिए. एक होता है, अगर आपको कॉमन फैक्टर समझ में आ गया है, देखिए यहाँ एक है, एक A है, यहाँ 3 A है, तो कॉमन सेम चीज़ दोनों में है, वो सिर्फ A है, क्योंकि बाकी 2 A इधर है, इधर नहीं है. सो माय कॉमन फैक्टर इन A इज़ A, राइट? या फिर इसको फॉर्मूला की वजह से भी याद रखिए, जो सेम नंबर होंगे उसको एक बार लिखेंगे और पावर स्मॉलेस्ट पावर लेंगे. यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो विल टेक 1 पावर, ठीक है? B स्क्वायर और B में B लिखेंगे, स्मॉलेस्ट पार्ट 2 और 1 में 1 है, सो AB, राइट? सो कॉमन फैक्टर इज A दोनों में है, A क्यूब दोनों में नहीं है, A दोनों में है, B भी दोनों में, सो AB. सो माय आंसर इज A. गॉट इट? जैसे नंबर्स का करते हैं सेम वे हम यहाँ पे करें, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. नंबर्स का HCF करते हैं वैसा ही कर रहे हैं. नंबर्स की जगह हमारे पास वेरिएबल है, बट स्टिल वेरिएबल भी तो कॉमन दिख रहे हैं ना, सो दिख जाएगा. एग्जैक्टली. सो A इज़ AB. करेक्ट आंसर इज AB, पार्ट A. क्वेश्चन 6. द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 24, 30 एंड 42, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, कोई एक नंबर है जो कि इन सब से डिवाइड हुआ है, 18, 24, 30 एंड 42. सो मैंने जैसे HCF और LCM का कॉन्सेप्ट दिखाया था, आपको बताया था, तो आपको एक चीज़ स्ट्राइक कर गई होगी, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, राइट? LCM की, राइट? क्योंकि LCM वो नंबर होता है जो सबसे डिवाइड हो जाता है, सबसे छोटा नंबर. बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जो डिवाइड हो जाएंगे, उनमें से जो सबसे छोटा नंबर होता है वो LCM होता है. और HCF अगर होता तो वो इस नंबर से डिवाइड नहीं होता, वो डिवाइड कर रहा होता है इन सबको. तो यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही है, LCM की बात हो रही है. सो दे आर सेइंग द लीस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय दिस विल लीव इन ईच केस द सेम रिमाइंडर 1. ओके, कहानी में ट्विस्ट छोटा सा. LCM जो होता है वो जब इनसे डिवाइड होता है वो परफेक्ट मल्टीपल होता है, रिमाइंडर 0 छोड़ता है. इस केस में बोल रहे हैं वो भी लीस्ट ही नंबर की बात कर रहे हैं. यहाँ पे एक लीस्ट नंबर है जो कि रिमाइंडर 0 नहीं छोड़ रहा, आपकी बात रिमाइंडर 1 छोड़ रहा है, ठीक है? और तब आपको बताना है सबके केस, चारों केस में 1 रिमाइंडर छोड़ रहा है. सो दैट लीस्ट नंबर इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग. ओके, फाइन. LCM के केस में रिमाइंडर 0 छोड़ता है, यहाँ पे रिमाइंडर 1 छोड़ रहा है, ठीक है? जैसे सपोज 18 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे जो नंबर होगा इसको हम 18 से डिवाइड करेंगे, से, राइट? जस्ट से 18 5 राइट? वी नो 18 5 90. ये जो है ये रिमाइंडर 1 छोड़ रहा है, इसका मतलब ये 91 होगा, राइट? 0. या 18 सपोज 6 108,
तो यहाँ पे 108 है, यानी कि जो नंबर होगा वो 109 होगा, तभी 1 छोड़ेगा। इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो भी नंबर है वो LCM प्लस 1 है, राइट, क्योंकि LCM बिल्कुल परफेक्टली मल्टीप्लाई करता है। हमारे केस में देख कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई तो कर रहा है बट रिमाइंडर 1 छोड़ रहा है, एंड इन ऑल द केस ओनली 1, यानी कि एक ही बड़ा है सिर्फ। कॉमन जो मल्टीपल है, चारों से डिवाइड हो रहा है, यानी कि चारों का मल्टीपल है, चारों का LCM है, उससे सिर्फ एक बड़ा है। तो वेरी इजी, हम चारों का LCM निकाल लेते हैं, उसमें एक ऐड कर देंगे, हमें नंबर मिल जाएगा। एक्जैक्टली। सो अब चारों का LCM निकाल लीजिए। चारों का LCM निकालने के लिए 2 तरीके हैं। एक जो आप अपना करते हैं सिंपल, 18 का निकालिए, 24 का निकालिए, 30 का निकालिए, 42 का निकालिए, कॉमन फैक्टर्स को कर लीजिए। कर लेते हैं, 2 9 18, 3 3 3 1, ठीक है, 2 12, 2 6, 2 3, 3 1, 2 15, 3 5, 5 1, ठीक है, 2 21, 2 2 2 1, 3 7, 7 1, ठीक है। तो फैक्टर्स हो गए हैं 18 के, हो गए हैं 2 × 3 × 3, 24 के हो गए हैं 2 क्यूब × 3, इसको 3 स्क्वायर लिख लीजिए, एक ही बात है, जगह भी बच जाएगी हमारी थोड़ी सी। 2 × 3 स्क्वायर 18 के, 24 के 2 क्यूब × 3, 30 के 2 × 3 × 5 और इसके 2 × 3 × 7, ठीक है। तो LCM आप देख सकते हैं, 2 सिंगल 2 सब में है, किसी में क्यूब है लेकिन सिंगल 2 सब में है, तो LCM में सिंगल 2 आ जाएगा। 3 देखिए स्क्वायर है, 1 है, 1 है, 1 है, सो लीस्ट वाला स्मॉलेस्ट वाला पावर 3 1, बाकी कुछ नहीं है। 5 यहाँ है पर बाकियों में नहीं है, 7 यहाँ है बाकियों में नहीं है, तो दैट्स ऑल। सो दिस कम्स टू, ओहो व्हाट एम आई डूइंग, आई एम फाइंडिंग HCF, पटक 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 पटक। सो 7 है, सो LCM निकाल लीजिए। देख लीजिए इसमें पावर 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है 2, और पावर कौन सी आती है, मैक्सिमम वाली आती है। हमने HCF निकाला था तो पावर मिनिमम वाली आई थी, स्मॉलेस्ट पावर। LCM में हाईएस्ट पावर आती है। 2 की 1, 2 की क्यूब 1 1, सो 2 क्यूब विल टेक, ठीक है। 3 की स्क्वायर 1 1 1, सो 3 स्क्वायर हाईएस्ट पावर आती है। 5 एक जगह है और कहीं नहीं है, पावर 1 है, सो पावर 1। 7 भी एक जगह है विद पावर 1, दैट्स ऑल, और कोई नंबर नहीं है, राइट। सो मेरा LCM आ गया 2 क्यूब विच इज़ 8, 3 स्क्वायर × 9 एंड 5 × 7, दैट इज़ 35। इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 9 72, 72 × 35 कर लीजिए, 35 × 72, ठीक है। 8 9 72 × 35, 5 2 10, 5 7 35, 36, 3 2 6, आप अपनी स्पीड से कीजिए, 3 2 6, 3 7 21, सो इट कम्स टू 0 12 3 1 4 5 2, दिस कम्स टू 2 5 2 0। नो नो नो, ये जो है हमारा LCM आया है 2520, पर हमें ये क्या बोला था कि वो रिमाइंडर छोड़ेगा। इससे तो ये जो LCM आया है 2520, इससे तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे चारों को तो रिमाइंडर 0 आएगा, बिकॉज LCM इज़ अ परफेक्ट मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स। पर हमें यहाँ पे रिमाइंडर अभी 2520 जो आया है मेरा, उससे अगर मैं इन चारों को डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर 0 आएगा, पर मुझे 0 नहीं चाहिए, मुझे 1 रिमाइंडर चाहिए। दैट मीन्स इसमें हमें 1 ऐड करना पड़ेगा। Getting it, 2520 plus 1, this becomes my new number। ये नंबर ज़रूर यहाँ होगा जो कि हम चारों को डिवाइड करेंगे तो 2520 चला जाएगा, 1 1 रिमाइंडर बचेगा। Got it? So C is my correct answer। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार ट्रेंडिंग है, तो आप ध्यान रखिए जब भी बोलेंगे रिमाइंडर है तो आप LCM निकालिए और रिमाइंडर 1 प्लस कर दीजिए, रिमाइंडर 3 हो तो 3 प्लस कर दीजिए, जो भी रिमाइंडर दिया उसको प्लस कर देंगे। गॉट इट? कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ चारों का LCM निकाला है।
Okay, now question number 7th. Question number 7th is HCF of this and this and this is. इन सबका HCF निकालना है. बहुत ही डायरेक्ट एंड सीधा क्वेश्चन है. आपको इसमें 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए. आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दे दिया उन्होंने, यू नो, प्राइम फैक्टराइजेशन करके दे दिया है. आपको कुछ नहीं करना है. आपको सिर्फ देखिए HCF दिस, तो आप कॉमन फैक्टर्स यहीं से देख के निकाल लीजिए. मैं यहाँ भी नहीं लिखूँगी इसको, आप भी अपना रफ वहीं पे पेपर को सामने ले आइएगा. आप यहीं से कॉमन देखिए. 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है. स्मॉलेस्ट पावर 3, 2, 4, तो स्मॉलेस्ट पावर इज़ 2, सो 2 स्क्वायर. याद रखिए स्मॉलेस्ट पावर HCF में, हाईएस्ट पावर LCM में. 2 क्यूब 2 स्क्वायर 2 4, 2 स्क्वायर आ गया. 3 में 3 3 3 पावर 2 3 1, so power is 1, right. 5 में पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 1. 7 सब में नहीं है सो नहीं लेंगे. HCF में सब में होना चाहिए. LCM में किसी एक में भी होगा तो वहाँ आ जाता है. HCF में सब में होना चाहिए, राइट. दैट्स ऑल. तो कर लीजिए. 2 2 ज़ा 4 4 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 5 ज़ा 60. क्लियर, सिंपल सा है. HCF है. नाउ कम्स 8th क्वेश्चन. इफ LCM ऑफ 12 42 इज दिस. 12 एंड 42 का LCM निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसे m की फॉर्म में दिया और वैल्यू ऑफ m दिया है. ये भी इजी है. आपका 12 एंड 42 का LCM निकाल लेते हैं. 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा 42, 221, 3771, right. So this comes to 2 square 3 into इधर मल्टीप्लाई आना था. 2 स्क्वायर इंटू 3 और दूसरा है 2 इंटू 3 इंटू 7. ठीक है. सो आपका LCM की बात की है. सो LCM आ रहा है 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, हाईएस्ट पावर 2 स्क्वायर. 3 इधर भी है, 3 इधर है, सिंगल पावर ये दोनों तरफ. और 7 हाईएस्ट पावर 1 है, सो 7, राइट. सो दिस कम्स टू 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 7 ज़ा 84. ठीक है. दिस नॉट द आंसर, माइंड इट. LCM ऑफ दिस उन्होंने बोला है 10m + 4 और हमारा LCM ऑफ दिस आ रहा है 84. LCM ऑफ 12 42 हमारा 84 आ रहा है. वो बोल रहे हैं 10m + 4 है, जो कि ऑब्वियसली 84 के बराबर होगा. वैल्यू ऑफ m निकालनी है, निकाल लीजिए. 84 - 4 कर देते हैं अपॉन 10, इधर चला जाएगा. 80 अपॉन 10, दिस कम्स टू 8. सो माई m इज 8 एंड आंसर इज B. आई थिंक कोई डाउट होना नहीं चाहिए. बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, पर इसी तरह के क्वेश्चंस आपके CBSE में आएंगे एग्जाम्स में, तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिए. LCM दिया है 10m4 की फॉर्म में है, कर दीजिए. यू नो, सारे क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा. और आंसर्स विदाउट सोल्यूशन, ओनली द आंसर्स रखिए. आप उनको मत देखिए, आप पहले सारे क्वेश्चंस कीजिए, फिर चेक कीजिए, गिव योरसेल्फ मार्क्स. एंड अगर नहीं पूरे करेक्ट कर पा रहे दोबारा से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. जहाँ गलत हुआ है चेक कीजिए सोल्यूशन मेरा क्या कॉन्सेप्ट था, आपने क्या गलती करी है, करेक्ट इट एंड डू इट अगेन, राइट. सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9. सो क्वेश्चन 9 वी हैव find HCF and LCM of these three numbers, right. Find HCF of 8925 into LCM of 8925, right. You have to find out HCF into LCM and tell us which is the correct answer.
फॉर HCF into LCM, राइट. वन वे आप इस पूरे का HCF निकालो, इस पूरे का LCM निकालो और मल्टीप्लाई करो और करो, ठीक है. बट MCQ में एज आई सेड, फर्स्ट थिंग इज़ यूल फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट वे. आपको पूरा सोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा डिटेल नहीं. तो आपको समरी में हमारा पॉइंट था, फॉर्मूला था HCF into LCM is equal to product of the numbers. That means HCF of 8925 into LCM of 8925 equal to will be 8 into 9 to 25. ठीक है. तो 8 9 25 ज़्यादा ईजी है. 8 9 जो 72, 72 इंटू 25 एक ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. रादर देन HCF आप फैक्टराइजेशन करोगे, LCM में फैक्टराइजेशन करोगे, दो बड़े बड़े टर्म्स आएंगे, उनका फिर मल्टीप्लिकेशन करोगे, राइट. सो रादर देन विल क्विकली डू सोल्यूशन. रफ वर्क कर रहे हैं हम यहाँ पे 9th का. वी नो HCF इंटू LCM विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम नंबर्स. यहाँ पे HCF LCM है 8 9 25 के, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 8 9 और 25 को. HCF इंटू LCM निकल जाएगा, ठीक है. सो दिस विल बी 8 9 72 इंटू 25. 72 इंटू 25 कर लीजिए. 5 2 10, 5 7 35 36, 2 2 4, 2 7 14 15. Just again 5 2 10, 5 7 35 36, 2 2 4, 2 7 14. ठीक है. सो 0 10 7 800. So it comes 1800. क्लियर, क्विक है. रादर HCF LCM निकालने के इनटू देखा तो स्ट्राइक करेगा फॉर्मूला. फॉर्मूले से देखो शॉर्ट होता है तो ठीक है, नहीं होता तो हम डिटेल तो करेंगे. अगर नहीं आ रहा है, सपोज सी आप ये मत टेंशन लीजिए कि अगर मुझे फॉर्मूला नहीं आता तो मैं कैसे करूँगा, मेरे को तो HCF LCM ही निकालना आता है. कोई बात नहीं, आप थोड़ा जल्दी जल्दी HCF LCM में निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट दिस आंसर ओनली, यू विल गेट फुल मार्क्स. कोई इश्यूज़ नहीं है. MCQ निकालने के नॉट इवन 5-10 तरीके हो सकते हैं, सबके अलग अलग आंसर, सबका करेक्ट हो सकता है. टाइम में थोड़ा बहुत होगा कम ज़्यादा, किसी का बहुत जल्दी, किसी का बहुत लेट, किसी का ठीक. बट देन यू कैन कॉम्पनसेट ना. आपका ये लेंदी के ये आपको शॉर्टकट आ गया, किसी ने ये शॉर्टकट, ये लेंदी के ये शॉर्टकट कर लिया. सो इट्स ओके. बट रुकना नहीं है, दिमाग लगाना है, फटाफट करना है. HCF LCM भी अगर आप जल्दी जल्दी करो तो हो सकता है उतना ही टाइम लगे, राइट. सो MCQs में कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है, तरीका नहीं है करने का. जो स्ट्राइक करा है करो. मैं आपको सारे ऑप्शंस बता देती हूँ, ठीक है. 10th, इफ़ HCF ऑफ दीज टू नंबर्स इज़ 13, उसी लाइन पे है, उसी फॉर्मूले पे है, लग रहा है. इफ़ HCF ऑफ 26 169 इज़ 13, देन LCM ऑफ दिस इज़ इक्वल टू दिस, राइट. आपके पास दोनों नंबर्स दिए हुए हैं वैसे ही, तो उस साइड प्रोडक्ट आ जाएगा, इधर HCF LCM आ जाएगा. LCM नहीं दिया हुआ है, राइट. वहाँ पे प्रोडक्ट निकालना था, यहाँ पे LCM नहीं दिया हुआ है, LCM फाइंड करना है हमें. HCF दिया है दो नंबर्स का. सो अगेन वी नो HCF. फिर से बोल रही हूँ, ये फॉर्मूला सिर्फ मैं आपको समझाने को लिख रही हूँ. वहाँ पे आपको MCQ में अपने रफ वर्क में फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप सीधा देखोगे HCF क्या है, 13 इंटू LCM इक्वल टू इंटू. मैं आपको यहाँ समझाने के लिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने अभी ज्वाइन किया होगा या जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी होगी क्वेश्चंस की, तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं. सो इट्स बेटर आई मेक इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू. सो 26 and 169, HCF इज़ 13, राइट. नंबर्स आर 26 and 169. सो दोनों के LCM का इक्वल हो जाएगा 26 और 169 का मल्टीप्लाई, ठीक है. HCF आपका 13 है, सो 13 LCM विल बी 26 इंटू 169. LCM कितना हो जाएगा, LCM कितना आ जाएगा, 26 इंटू 169 अपॉन 13. 13 1 ज़ा, 13 2 ज़ा, सो 2 इंटू 169 कर लीजिए. 2 9 18, 2 6 12 and 13, 2 1 2, 338, which is C. क्लियर है. फॉर्मूला बस याद कर लीजिए. HCF of any set of numbers into LCM of any set of numbers is always equal to product of those two numbers or those three numbers, whichever set of numbers are there, right. So this comes to
10th question. Now see what is the 11th question. In a school there are two sections, section A and section B, right? Two section है class school में, class 10th के section A and B. There are 32 students in section A. section A में 11th question कर रहे हैं. section A में 32 students है और section B and 36 students in section B. सेक्शन B में 36 स्टूडेंट्स है. ठीक है, करना क्या है, डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी. उनकी 10th क्लास की एक लाइब्रेरी है, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स चाहिए सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन A एंड B. दैट मीन्स आपके पास लाइब्रेरी में कितनी बुक्स चाहिए, मिनिमम बुक्स, ताकि जब आप उनको बांटेंगे दोनों को, सो वो सारे स्टूडेंट्स पे इक्वली बट जाए. ऐसा ना हो कि 32 में से 32 को पूरी पहुंच गई, 36 में 20 को ही पहुंची, 16 कम पड़ गई. अगर एक एक बुक बटनी है तो सबको मिलनी चाहिए, दो मिलनी है तो सबको मिलनी चाहिए, तीन मिलनी है तो सबको मिलनी चाहिए, इक्वली सबको बटनी चाहिए. आर यू सीइंग ए पैटर्न? बेसिकली हमें चाहिए कि हमें एक एक बुक बांटनी तो कितने में देनी पड़ेंगी, 68, राइट. दो बांटनी है तो 68 इंटू 2, तीन बांटनी है तो इंटू 3. दैट मीन्स वी वॉन्ट मल्टीपल्स ऑफ दीज टू, राइट. और एक ट्रिक बता रही हूँ, एक आपके पास हिंट होता है क्वेश्चन में, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड LCM और HCF. तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन दे से मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, फाइंड आउट मिनिमम नंबर. सो LCM जो होता है दैट इज़ योर लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई. तो लोएस्ट मीन्स ये मिनिमम की बात हो रही होती है, राइट. और जब HCF की बात करते हैं तो नॉर्मली हाईएस्ट और मैक्सिमम की बात होगी, हाईएस्ट और मैक्सिमम की जब बात हो रही होगी. तो जब आपको टर्म दिखता है मिनिमम, दैट डजंट मीन 100% LCM ही होगा, कोई और भी मेथड हो सकता है आउट ऑफ ए, बट एटलीस्ट वो क्लिक करेगा कि ओके मिनिमम मीन्स HCF की बात नहीं हो सकती, LCM की बात हो रही है. पर उसके आगे आप देख लीजिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना है सारे बच्चों में. इसका मतलब 32 और 36 के मल्टीपल्स में चाहिए और मिनिमम बुक्स चाहिए, तो दैट मीन्स LCM. मैंने बताया जैसे मल्टीपल्स में ही चाहिए उसकी, या तो 68 बांटेंगे या तो 68 और 2 बांटेंगे ताकि दो सबको मिल जाए. इससे थोड़ा बहुत भी 2 के आगे प्लस माइनस होगा तो कहीं पे कुछ बच्चे रह जाएंगे, जो कि हमारी कंडीशन नहीं है, सबको बराबर बटनी है. सो दैट मीन्स LCM निकालना है, मल्टीपल चाहिए और लीस्ट मल्टीपल चाहिए, क्योंकि इतनी मिनिमम बुक हो सकता है ज़्यादा बुक बांट के 5 बुक भी सबको बराबर बट सकती है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं 5 बुक नहीं बांटनी है, इतनी बताओ कि दोनों को बराबर बट जाए. मिनिमम कितनी बुक चाहिए, ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहता स्कूल. ओके, सो दैट वे LCM विल फाइंड आउट. तो LCM फाइंड आउट कर लीजिए. 32 स्टूडेंट है और 36 स्टूडेंट है, 32 एंड 36 निकाल लीजिए. 32 का LCM एक साथ भी निकालने का तरीका होता है, जिसको आता है वो निकाल लीजिए, लेकिन नहीं आता है तो अभी इस वक्त कंफ्यूज नहीं होंगे एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, हम सेपरेट ही निकाल लेते हैं, देर नहीं लगेगी. सॉरी, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1, ठीक है. 1 2 3 4 5, 2 raised to power 5. 36 का निकाल लीजिए. 2 18 2 9 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है. सो अभी हमें LCM कैसे निकलता है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, हाईएस्ट पावर ले लेंगे 2 raised to power 5. 3 कहीं एक भी जगह होगा तो LCM में आता है, HCF में होता है जो दोनों में होना चाहिए. तो यहाँ पे 3 है, 3 स्क्वायर, राइट. सो 2 raised to power 5 हमें पता है, हमने अभी किया है. 1 2 3 4 5 32 होता है. सो 2 raised to power 32 इंटू 9, 3 raised to power 9. So 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 28. Do we have an option to 88? We do. Got it?
आपने कुछ नहीं किया है, 32 एंड 36 का एलसीएम निकाला है। एलसीएम क्यों निकाला है? क्योंकि उनको मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स चाहिए, इसलिए लोएस्ट निकाला है। और मल्टीपल क्यों निकाला है? क्योंकि उन्होंने बोला है सब बच्चों को इक्वली आने चाहिए, यानी कि या तो एक एक बुक आएगी तो 68, 32 + 36 68 इंटू मल्टीपल्स में होना है उसके, राइट। और वो ऐसा कुछ मल्टीपल जो दोनों का मल्टीपल हो, तो कॉमन मल्टीपल एलसीएम से ही निकलता है, राइट। सो हेयर इज आवर 11th question, 288. Now comes the 12th question. LCM and HCF of two non-zero positive numbers. LCM and HCF of two non-zero positive number. कोई positive number है, zero नहीं है, वो are equal, right? LCM and HCF दोनों equal है, then the numbers must be, दोनों नंबर प्राइम होंगे, को प्राइम होंगे या कंपोजिट होंगे या इक्वल होंगे, ये आपको बताना है, राइट। सो अभी फ़िलहाल के लिए मैं सोल्यूशन यहाँ कर देती हूँ 12th का। दिस इज़ रफ, राइट। अभी देखिए आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों सेम बोले हैं। कोई दो नंबर है, दो पॉजिटिव नंबर है, ये दो नंबर है, 1 नंबर 2 नंबर, इनके एलसीएम और इसके एचसीएफ दोनों सेम है, राइट। सो आपको बताना है कि वो दो नंबर्स आपस में क्या होंगे, प्राइम होंगे कि को प्राइम होंगे, कॉम्पोजिट होंगे या इक्वल होंगे, राइट। तो इसके 2-3 तरीके हैं करने के। एक तो कॉन्सेप्चुअली ही गेस किया जा सकता है कि जैसे मैंने बताया है एलसीएम होता है इसका मल्टीपल, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल, यानी कि इनके टेबल में आता है। सपोज़ ये 3 है तो 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा, 3 3 ज़ा, 4 1 ज़ा, 4 2 ज़ा, 4 3 ज़ा, ऐसा नंबर जो दोनों में आए वो यहाँ पे आ जाता है, राइट। तो वी नो किसी भी नंबर का मल्टीपल जो शुरू होता है सबसे पहला इंटू 1 से सेम नंबर आता है, उसके बाद उससे बड़े होते हैं, राइट। दैट मीन्स जो ये एलसीएम होता है वो इन दोनों नंबर में से जो बड़ा होता है या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, गेटिंग इट। इन दोनों में से जो बड़ा है उससे या तो बड़ा हो, बराबर होगा या बड़ा होगा। और जो एचसीएफ होता है वो इन दोनों के या तो बराबर होगा या छोटा होगा, गेटिंग इट, या तो बराबर होगा या छोटा होगा। तो अब हम कह रहे हैं कि जो बड़ी चीज़ है जो नंबर से बड़ी होती है और एक दूसरी चीज़ जो नंबर से छोटी है वो दोनों बराबर है, राइट। तो फिर वो इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई होगी? एक नंबर इन दोनों से बड़ा भी है, एक नंबर इन दोनों से छोटा भी है और वो दोनों सेम नंबर है। यानी कि हम कह रहे हैं एक सेम नंबर दो नंबरों से बड़ा है या फिर दो नंबरों से छोटा है। इज़ इट पॉसिबल? इट्स नॉट कंसेप्चुअली। पर हमने ध्यान से क्या बोला था, या तो उन दोनों के बराबर होगा या बड़ा होगा, बराबर होगा या छोटा होगा। अब अगर ये दोनों सेम है, एलसीएम एचसीएम दोनों के दोनों x है, तो x इससे बड़े भी है और x इससे छोटे भी है, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब वो बराबर वाली कंडीशन प्रूव होगी। इसका मतलब जो ये x है वो इन दोनों के बराबर होगा और ये भी इन दोनों के बराबर होगा। दैट मीन्स दीज टू नंबर्स, ऑल 4 नंबर्स विल बी सेम, देन ओनली दिस कंडीशन विल को सेटिस्फाई, राइट। क्योंकि जैसे 4 and 4, 4 के मल्टीपल सेम मल्टीपल 4 हो जाएगा और 4 अपने ही टेबल में आता है, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी। 4 की जगह कोई भी नंबर हो, अपने फैक्टर, एक ऐसा नंबर जो अपना ही फैक्टर है और उसका मल्टीपल भी अपना है, एलसीएम भी सेम है, एचसीएफ भी सेम है, वो तभी हो सकता है जब वो नंबर सेम हो और वो सेम नंबर ही उनके एलसीएम एचसीएफ बन जाएंगे। गेटिंग इट? तो एक तो ये जिसको एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है वो तो दिमाग में ही इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ जाएगा और वो इक्वल लिख देगा। और ज़्यादा चाहिए तो वो प्राइम और कॉम्पोजिट का एक एग्जांपल भी लेके देख सकता है। कोई भी दो प्राइम ले लीजिए, कोई दो नंबर से 3 and 5, राइट। इनका अगर आप एलसीएम देखेंगे सो 3 2 ज़ा, 6 ज़ा, 4 ज़ा, तो आप 15 आपका एलसीएम हो जाएगा। और इनका अगर आप फैक्टर देखेंगे तो फैक्टर 1 होगा आपका, क्योंकि प्राइम नंबर्स है, राइट। तो प्राइम नंबर तो नहीं सेटिस्फाई होता, आपके सेम नंबर्स
आपके सेम नंबर्स हो ही नहीं पाएंगे, कोई भी दो प्राइम नंबर इक्वल अगर मैं कर लेती हूँ प्राइम नंबर्स को, उस केस में ये सेटिस्फाई हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली दे कैन बी प्राइम, राइट, दे कैन बी प्राइम, बट प्राइम के अलावा अगर मैं यहाँ 4 भी लेती हूँ तो भी सेटिस्फाई हो रहा है, गेटिंग इट। तो प्राइम इसमें क्या बोला है, देन द नंबर मस्ट बी प्राइम, नो इट इज़ नॉट ए कंडीशन। द नंबर कैन बी प्राइम, नंबर कैन बी कंपोजिट, 3 होगा 4 होगा, दोनों केस में होगा, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। प्राइम नहीं होगा तब भी मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, लेकिन दे हैव टू बी इक्वल, इक्वल होना ज़रूरी है। इक्वल नहीं होगा फिर नहीं हो पाएगा। अगर 2 नंबर इक्वल नहीं होंगे तो इनका एलसीएम बड़ा हो जाएगा, एचसीएफ छोटा हो जाएगा। ये दोनों सेम हो ही नहीं सकते किसी हालत में जब तक ये दोनों सेम ना हो, राइट। सो इक्वल इज द आंसर, बट देयर इज अनदर सोल्यूशन, जिसको ये वाला सोल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। आई विल टेल यू, टेक another solution. Say the 2 numbers be, जो 2 नंबर है बी एक्स एंड वाई, ठीक है। 2 नंबर सपोज एक्स एंड वाई है, एंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि उन्होंने बोला सेम है, देयर एलसीएम एंड एचसीएफ आर क्या है, सेम है। सेम में से कुछ भी लेते हैं से के, ठीक है। सो दैट मीन्स हम कहना चाहते हैं कि हमारे 2 नंबर्स जो है वो x और y है, इनके एलसीएम के आ रहा है और एलसीएम भी के आ रहा है और एचसीएफ भी के आ रहा है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको बताना है एक्स एंड वाई में क्या रिलेशन होगा। ओके, देख लेते हैं। सो वी नो, सी एक्स जो है के का फैक्टर है, क्योंकि के एचसीएफ है, तो के इंटू सम करके दैट मीन्स के इंटू एन एक्स होगा और के इंटू एम वाई होगा, वेयर एन एंड एम आर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। एन और एम कोई ऐसे नेचुरल नंबर होंगे जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फैक्टर का मतलब वही होता है ना कि के टेबल में एक्स भी आ रहा है, के इंटू एन एक्स एंड के इंटू एम वाई, ठीक है। अभी हमारी ये वाली हमें पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दैट मीन्स एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ हमने के रखे थे, दैट मीन्स के इंटू के इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी कि एक्स इंटू वाई, जो कि हमने के एन और के एम निकाल लिया है, क्योंकि वो फैक्टर्स है तो हम एक्स एचसीएफ की फॉर्म में भी कर सकते हैं। सो दिस बिकम्स के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर एन एम, दिस गिव्स मी एन एम इक्वल टू 1, राइट। दैट मीन्स जो आपके एन एम है 1 है। दैट मीन्स कोई भी 2 नंबर्स 1 कब होते हैं, जब भी 2 नंबर का मल्टीप्लाई 1 है, दैट मीन्स वो 1 1 ही है, एन इक्वल टू 1 एम इक्वल टू 1। कोई और आप नंबर सोच सकते हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन 1 आए, प्रोडक्ट 1 आए? नो, 1 इंटू 1 ओनली इज़ 1। सो एन इज़ 1 एम इज़ 1, एन इज़ 1 एम इज़ 1, यानी कि एक्स जो एक नंबर है वो के है और जो दूसरा नंबर y है वो भी k है। दैट मीन्स ये भी k है और ये भी k है। दैट मीन्स द नंबर्स मस्ट बी इक्वल एंड दे मस्ट बी इक्वल टू योर HCF and LCM. All four numbers of the set, HCF, my LCM, my 2 numbers will be equal. In that case only possible है कि मेरे HCF LCM सेम आए, अदरवाइज हमेशा HCF छोटा होगा इन नंबर्स से, LCM बड़ा होगा, राइट। केवल जब ये सेम होंगे उस केस में चारों चीज़ें सेम हो जाएगी। तो ये एज कंसेप्चुअली याद रखिए आप, जब भी HCF LCM बात करें तो केवल जब वो 2 नंबर सेम होंगे तभी उनके HCF LCM सेम हो सकते हैं, अदरवाइज हमेशा छोटे बड़े होंगे। सो विद दिस आवर 12th क्वेश्चन इज डन, डी।
Let's do the 13th question. Don't worry, I'm giving you the questions in the description, so you can refer to them, you can practice, or still after looking at my solution, after doing the questions with me, still if you find any particular question difficult and complicated, you're not able to understand, let me know in the comments. I'll help you out with that, right? Thank you. Let's do the next question. So we've come to question number 13. Question number 13 says, what is the HCF of smallest prime number and smallest composite number, right? So in our summary, point number 1 and 2 were about prime numbers and composite numbers only. So we know I told you our smallest prime number is 2 and smallest composite number is 4, and I also told you, just to remind you for other purposes, other questions, one is neither a prime number nor a composite number, right? After that starts 2 with the smallest prime number and smallest composite number. So you have to tell the HCF of both 2 and 4. So 2 and 4 का HCF, 2 तो अपने में प्राइम है, 4 को प्राइम बना लेंगे, that is 2 square. So 2 and 2 square का HCF निकाल लीजिए, right? 2 के फैक्टर 2 ही आया है, 4 का फैक्टर 2 स्क्वायर आया है, तो HCF क्या होता है? कॉमन, दोनों में कॉमन हो, स्मॉलेस्ट पावर, दैट इज 2, सो दैट विल बी 2. So B is my correct answer. Is the HCF of smallest, just smallest prime और smallest composite पता होना चाहिए. 2 because 2 से फिर सारे prime numbers की सीरीज शुरू होती है. 2, 3 are prime numbers and 4 is the composite number. Next question 14. The decimal expansion of the rational number 37 upon 2 raised to power like 2 square into 5 will terminate after. They have asked that there is a rational number 37 upon 2 square into 5. Denominator prime factorize किया हुआ है, denominator दिया हुआ है. This is a rational number. They are asking इसका जो decimal expansion होगा, इसको मतलब सॉल्व करके डिवाइड करके जो डेसिमल आएगा वो पॉइंट मतलब आफ्टर पॉइंट कितने डेसिमल प्लेसेस पे टर्मिनेट होगा, राइट? पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होंगे. सो वन वे इज़ पूरा सॉल्व करो, डिवाइड करो. जिसने कॉन्सेप्ट नहीं किया होगा शायद वो डिटेल में करने लग जाए. 2 स्क्वायर इज़ 4, 4 इंटू 5 20, 37/20, 3.7/2, 1.85. तो वो एक तरीका है, बट वो सही तरीका नहीं है. हमें थ्योरम यूज़ करनी है जो मैंने पॉइंट नंबर 9, हमारे समरी में पॉइंट नंबर 9 आप एक रेफ़र कीजिए. वी कैन डायरेक्टली, द थ्योरम सेज directly without doing the detailed division, we can tell that in any rational number just by looking at the denominator and doing its prime factorization, we can tell कि numerator में कितने place of decimal के बाद कितने decimal places के बाद वो terminate हो जाएगा. कैसे? denominator को देख के. denominator 2:5, 2 और 5 के टर्म्स में ही होगी तभी टर्मिनेट होगा. और उसका जो पावर देखेंगे 2 और 5 का, उसमें से जो हायर पावर होगा उतने प्लेस ऑफ डेसिमल में टर्मिनेट हो जाएगा. यहाँ पे 2 का 2 है, 5 का 1 है, दैट मीन्स हायर इज़ 2, सो 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. गेटिंग इट? 2 raised to power 7 और 5 raised to power 2 होता तो 7 हो जाता. 2 raised to power 2, 5 raised to power 4 होता तो 4 हो जाता. सो 2 और 5 की पावर्स देखेंगे, सिर्फ जो ज़्यादा पावर होगी उतने प्लेस ऑफ डेसिमल में टर्मिनेट हो जाएगा, राइट? सो बी. Question number 15th, number of decimal, again the same 9th point will be used. The number of decimal places after which the decimal expansion of this, again same है, will terminate is, इसमें भी सेम यही है. इसमें आपको बताना है कि ये पूरे रैशनल नंबर को सॉल्व करेंगे तो कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद जाके टर्मिनेट हो जाएगा. एग्जैक्टली है. पावर इज़ 2, पावर इज़ 3, सो हायर पावर इज़ 3. सो माय आंसर इज़ 3, राइट? याद रखिए 2 और 5 की पावर्स देख लीजिए, ज़्यादा पावर है उस पर टर्मिनेट हो जाएगा. सो विद दिस वी
done our 15 question number 15, which are nothing, 15, practicing 15 MCQs is not at all sufficient for you guys, not for me. So we'll continue with 16 onwards in our next video. I would just request you to go through the summary of the chapter I've done in the beginning of the video. Keep it handy. You can you note it down in your short quick language, shorthand, and or take a printout or keep a screenshot or whatever you want to, whichever way you want to keep it with you, but keep the summary of it, and let's practice more questions. See you on the other in the other video with question number 16 onwards, right? And any problem here, please do write a comment to me. I'll get back, and all these questions along with the answers I'm putting in the description box, right? So happy practicing, and see you in the other video. Bye bye. Take care, eat healthy, sleep well, and just keep taking breaks also. Keep meeting friends, keep doing some activity you enjoy, and then come back to your studies. Bye bye.